Good morning, students. This video is for class 12th. Subject is economics and the topic is elasticity of demand. This is, second part of the video in which I was explaining degrees of price elasticity of demand, because I could not cover in my previous video this one, the fifth type, that is, I think elastic demand I could not cover. Wait, the last one I could not cover. Yeah, fifth one. So I need to cover this fast, then we'll have a recap about all the five. Elastic demand. Elastic demand is when percentage change in price is lesser than the percentage change in quantity demanded. Means a small change in price results in a big change, a considerable change in the quantity demanded of the product. In this case, children, as indicated over here, your EP, that is the symbol for price elasticity of demand, is greater than 1. In this case, remember, the demand curve which you are going to make will be flat. In the case of inelastic demand, it was steep. Okay, when you make a flat demand curve, I'm naming it D5. Okay, automatically when you mark the price and the quantity, you'll get the logic. How? You can see over here on y-axis OP, I'm encircling P, is the original price at which OQ is the original quantity. Okay, when the price falls to P1, OP1 is the new price now. You can see the price falls a bit, but that results in rise in the quantity demanded to OQ1. देखो, अब खुद देखो, P1 देखो, ये जो गैप है वो कम है. ये क्या दर्शा रहा है कि प्राइस चेंज बहुत ही कम हुआ, लेकिन प्राइस जो गिरा वो बहुत ही मामूली हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में आप देखो जो गैप है वो काफी ज्यादा है. तो वही पॉइंट हम बताना चाह रहे हैं. Percentage change in price is lesser than the percentage change in quantity demanded. Now let's have a fast revision of the 5 types of degree of elasticity which I discussed. तो perfectly elastic demand को आप ऐसे भी समझ लो symbolic form में कि price P for price, चाहे वो increase करे, whether it increases or decreases. D for demand. Demand horizontal line indicates same, it remains the same, constant. ये है हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. प्राइस का कोई फर्क डिमांड पे नहीं पड़ता. ये मेरा तरीका है समझाने का. ना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को देखो. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में बात को समझना कि प्राइस अगर जरा सा कम किया तो डिमांड जो है वो इतना बढ़ गई. ये देखो बड़ा एरो बता रहा है कि बहुत बढ़ गई, दैट वो इन्फिनिटी तक पहुंच गई. इन्फिनिटी का सिंबल है. एंड अगर प्राइस को आपने जरा सा बढ़ाया, you increase the price only a bit, तो what happens, सारे कस्टमर्स गायब हो गए एंड यू रियलाइज किया डिमांड इज जीरो. एक्सट्रीम केस है, थ्योरी में है, प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसा. देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा है, पे अटेंशन. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में I'll show you like this. प्राइस जितने से इंक्रीज हुआ, जितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ वो बराबर है. जो आपकी डिमांड है इस केस में क्या होगी, फॉल होगी. तो ये लगभग मैं इक्वल साइज के एरोज बना रहा हूं, एक ऊपर एक नीचे. परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड. दैट कैन बी इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस. तो इसको आप दूसरे तरीके से देख लो कि प्राइस जितने से गिरा, जितने परसेंटेज से गिरा, वो बराबर है परसेंटेज चेंज इन राइज इन डिमांड. ये एरोज का साइज देखो बराबर है. एक विजुअल वे है समझाने का. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. अब आते हैं इनइलास्टिक डिमांड पे. तो इनइलास्टिक डिमांड को आप ऐसे समझो, पेरेंशन P फॉर प्राइस.
price increased substantially. There's a considerable rise in the price, यानी कि प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा. उसके उसका अंजाम क्या होना था कि डिमांड जो है, उसका परिणाम ये होना था कि डिमांड जो है वो कम होगी. लेकिन डिमांड कम हुई, लेकिन बहुत ही कम हुई. यानी कि अ बिग चेंज इन प्राइस इज कॉजिंग a big rise in price is causing only a small fall in the demand. तो as डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो इनलास्टिक डिमांड है ये. इसका आप ऑपोजिट देख लो. प्राइस अभी मैंने राइज करवाया, अब प्राइस को फॉल करवा दो. लेट्स से प्राइस फॉल्स, काफी बड़ा एरो बना रहा हूँ समझाने के लिए कि प्राइस फॉल्स considerably, substantially, but as a result the demand rises. quantity demand rises but only a bit. ये क्या दर्शाता है कि ये डिमांड जो है, डिमांड इनलास्टिक है, इनसेंसिटिव है. प्राइस के ऊपर नीचे होने का ज्यादा फर्क डिमांड पे नहीं पड़ रहा है, इनलास्टिक डिमांड है. और लास्ट केस जो भी समझाया था ग्राफ पे जिसपे फ्लैट होता है, ये है इलास्टिक डिमांड. क्या फंडा है यहाँ कि जो पी फॉर प्राइस, प्राइस हल्का सा बढ़ा, मामूली बढ़ा. There's a small rise in the price which is indicated by a small arrow upward pointing, which is causing the demand, D for demand, to fall. But demand is falling. ये arrow देखो आप, symbolic way है समझाने की. तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो काफी ज्यादा फॉल कर गई. लॉन्ग एरो बता रहा है कि डिमांड में बहुत ज्यादा फॉल आया, हल्का सा प्राइस बढ़ाया और डिमांड बहुत गिर गई. इसका विपरीत उदाहरण क्या होगा, इसका विपरीत केस क्या होगा? प्राइस हल्का सा कम हुआ, एज इंडिकेटेड बाय स्मॉल डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो. अब क्या होगा? डी फॉर डिमांड, दैट स्मॉल decrease in the price is causing a considerable or substantial rise in the quantity demanded. हल्का सा प्राइस में बदलाव बहुत ज्यादा बदलाव ला रहा है डिमांड में. तो यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स द चेंज इन द प्राइस. ऐसे केस को बोलेंगे इलास्टिक डिमांड. ठीक है बेटा? With that I conclude this class. Okay, have a nice day. Take care, stay focused, work hard.